Good afternoon, everybody. I welcome all of you to the concluding session of Odisha Nirman Conclave 2019. On behalf of the Sambad Group, I am extremely delighted to welcome Shri Varun Gandhi amidst us. I would like to thank him for accepting our invitation. When I called him, I would like to confess that he has been extremely gracious and extremely polite. Something that is a rarity in politicians these days. And then later there was some glitch with the dates and stuff, and there was some apprehensions he might not be able to come today. But then I spoke to him again, and he promised me that he's going to try his best and be here. And I'm happy to say he kept his promise. Another thing that is a rarity in politicians today. Poet, best-selling author, activist, analyst, opinion leader, politician. He's multilingual, he can speak German, Spanish, French, that's what he told me right now. Shri Gandhi dons many hats. He is a second-term member of the parliament. He has many youngest to his credit. He was the youngest ever national secretary of the BJP, the youngest ever national general secretary of the party. Currently, he's a member of its national executive. Shri Gandhi is one of the most widely read columnists in the country today. He regularly writes for a lot of leading national and regional dailies, including our paper, the Sambad. Now, the focal points for this year's conclave were employment and the farmer. And I don't think we could have had a better speaker than Shri Varun Gandhi when it comes to deliberating on burning issues like farmer distress and the state of the rural economy, which are not only relevant for the state of Odisha, but are generally important topics of discussion across the nation. Shri Gandhi has extensively traveled the length and breadth of the country and spent a lot of time in India's villages, gathering rich experiences and ground zero insight. He strongly believes India's future lies in her villages. So without further ado, I would request Shri Gandhi to address our audience and share how farmers and villages can be effectively included in our growth story. And after his address, we would like to take a few questions from the audience if there are any. Thank you. मुझे कहा गया है हिंदी में बात करने के लिए, तो मैं हिंदी में अपनी बात रखूंगा। यहाँ पे उपस्थित सम्माननीय बुजुर्गवार नौजवान साथियों, कल मैं हैदराबाद में था। हम लोग ISB इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में एक लेक्चर देने गए थे और एक उदाहरण मेरे सामने पेश हुआ, और वो उदाहरण एक नौजवान का था जिसका नाम है रवि तेजा। रवि जब 13 साल के थे तो वो हैदराबाद के सड़कों पे जा रहे थे और उन्होंने देखा कि सड़क में एक गड्ढे को लेके एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई और लोग मर गए। और उन्होंने ये सोचा कि मैं नगर पालिका के पास जाऊं, मैं सांसद विधायक के पास जाऊं, इससे अच्छा कि मैं और मेरे दोस्त मिलकर इस सड़क के गड्ढे की भरपाई क्यों ना कर लें। तो उन्हें टूटे ईंट, पत्थर, तारकोल लेके उस सड़क के गड्ढे को भरने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसका शौर्य, उसका प्रताप हैदराबाद में और तेलंगाना में बढ़ा, और बेंगलोर में एक राजनीतिक व्यक्ति ने उसके बारे में पढ़ा अखबार में, तो उससे आग्रह किया बेंगलोर आने में। तब तक रवि हैड बिकम 14 years old, और ये अपने पिताजी के साथ गए और उन्होंने कहा कि बेटा, आपकी सोच कुछ नई है, आप बेंगलोर के लिए कुछ डिज़ाइन करो जिसके मुताबिक हम लोग इस समस्या का हल करें। रवि तेजा ने एक ऐप बनाया जिसका नाम है BBMP, विच इज़ द नेम ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी इन बेंगलोर, BBMP पॉटहोल रिपोर्टर। और BBMP पॉटहोल रिपोर्टर में क्या है कि अगर आप सड़क के गड्ढे का एक स्नैपशॉट लेके उसका अपलोड करते हो, अगर 24 घंटे में वो सड़क के गड्ढे की भरपाई नहीं हुई तो आपको उसके हर दिन के लिए अपने अकाउंट में 100 रुपये मिलते हैं, और जो म्यूनिसिपल इंजीनियर का देखरेख उसका करना पड़ता है, उसकी तनख्वाह से
रोज 100 रुपए डिलीट होते हैं। देखिए, हमारे देश में सूचना क्रांति आ चुकी है, संचार क्रांति भी आ चुकी है। जो देश के लोकतंत्र का अगला कदम है वो नागरिक क्रांति का है, और आज मैं इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। जिस किताब की बात आपने की, वो किताब शुरू होने से पहले ही मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव रैनी में गया, जहाँ पे चिपको आंदोलन का जन्म हुआ। चंदी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, और उन्होंने वृक्ष लगाने के लिए वृक्ष काटने के विरोध में बहुत बड़ा आंदोलन पर्यावरण का शुरू किया। लेकिन जब हम लोग कुछ साल पहले नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर में गए थे लेक्चर देने, तो जब हम एयरपोर्ट से निकल रहे थे, हमने देखा हजारों नौजवान सड़क पे हैं। मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्या है कैसे, लेकिन मैं रुका। मैंने उनसे पूछा, आप क्या कर रहे हो सड़कों पे? तो उनने कहा कि साहब, यहाँ एक स्टील फ्लाईओवर प्रोजेक्ट बन रहा है जिसका हम विरोध कर रहे हैं, और ये स्टील फ्लाईओवर प्रोजेक्ट को हम चाहते हैं, लेकिन ये 4000 पुराने पेड़ को काट के बनेगा। तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसका नाम है झटका, और हम लोगों से, जनता से, नागरिकों से आग्रह कर रहे हैं कि वो एक मिस्ड कॉल इस पे दे दे जो हमारे साथ हैं। तो 1 लाख लोगों ने एक दिन में मिस्ड कॉल उस व्हाट्सएप के नंबर पे दिया। उनका हौसला बुलंद हुआ थोड़ा सा, और उन्होंने कहा ठीक है, अब हम एक मानव श्रृंखला, एक ह्यूमन चेन पेड़ों के इर्द गिर्द करेंगे। मुख्यमंत्री को जनभावना के सामने झुकना पड़ा, और उन्होंने कहा कि हम लोग इस स्टील फ्लाईओवर प्रोजेक्ट को बनाएंगे, लेकिन अब हम लोग बिना एक पेड़ काटे इसको बनाएंगे। और ये जनता की विजय थी, ये नौजवानों की विजय थी। जो आप में से लोग मुंबई गए हो या जाते रहते हो, मुंबई में सबसे जो गंदी बीच थी वो वर्सोवा बीच थी, जहाँ पे कहा जाता था कि आदमी तो क्या, वहाँ जानवर भी जाना पसंद नहीं करता क्योंकि वो बीच इतनी गंदी है। वहाँ एक 18 साल के लड़के आफरोज शाह और एक 80 साल के बुजुर्ग हरबंस माथुर ने संकल्प लिया कि हम लोग रबर ग्लव्स पहन के हम धीरे धीरे इस बीच का कचरा कूड़ा उठाएंगे। और ये एक इतना बड़ा उदाहरण पेश किया जनता के लिए, वहाँ के नागरिकों के लिए, कि सबने कहा कि 80 साल के हमारे बाबा रोज़ शाम को ग्लव्स पहन के कूड़ा उठा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं उठा सकते? It has been 4 years now, and today Versova beach is the cleanest beach in Bombay. And if you go, you'll see how beautiful that 6-kilometer stretch is. You know, all of us, हम सब लोग जितने लोग हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि चलिए ये उदाहरण तो अच्छे हैं, लेकिन ये पढ़े लिखे थे, ये बड़े लोग थे, समाज का जो अंतिम व्यक्ति है क्या कुछ कर सकता है? यहाँ काफ़ी सारे हमारे माताएं बहनें बैठी हैं, मैं चाहता हूँ ये इस बात को सुने ध्यान से। मेरे ज़िले सुल्तानपुर, जहाँ से मैं चुनाव लड़ा, उसके बगल में एक डिस्ट्रिक्ट है अम्बेडकर नगर। एक दिन अम्बेडकर नगर में एक अनुसूचित जाति की एक छोटी सी लड़की 18 साल की, वो मजदूरी करती थी ईंट के भट्टे के ऊपर। और एक दिन वो जो ठेकेदार था उसने उसको हटा दिया कि आप जा सकते हो। उसने कहा कि साहब मैं जा तो जाऊंगी, लेकिन मेरे 2 दिन की दिहाड़ी आप मुझे दे दीजिए, डेली वेजेस। तो उसने ज़्यादा गौर नहीं किया, उसको भगा दिया। लाकीली उसका जो भाई था वो डिस्ट्रिक्ट लेबर कमिश्नर के यहाँ एक चपरासी था। तो वो वहाँ पे गई और उसने कहा कि मालिक हमारा ये दिक्कत है, इसमें मदद कर लीजिए। वो बड़ा अच्छा अफसर था, उसने कहा मैं आपका साथ दूंगा, कितने पैसे आपके देने हैं? उसने कहा साहब 60 रुपये दिन का
2 दिन का 120 रुपये। उसने कहा ठीक है, बट 1 मिनट के लिए उसने कहा कि आपने पूरे दिन काम नहीं किया। उसने कहा साहब पूरे दिन किया, उससे कुछ ज़्यादा ही किया। तो उसने कहा कि इस में तो 120 रुपये गवर्नमेंट ऑर्डेन्ड रेट है दिन का। उसने कहा साहब उसी काम के लिए मर्दों को 120 रुपये मिलते हैं और उसी काम के लिए महिलाओं को 60 रुपये मिलते हैं। और आप इस देश के अधिकांश ग्रामीण अंचल में जाएं तो आप ये पाएंगे कि महिलाओं को उसी काम के लिए पुरुषों से कम पैसे मिलते हैं हमारे देश में। अभी एक ग्रामीण अंचल के बारे में किताब जो लिखी मैंने, उसमें मैंने जब फर्स्ट लेक्चर दिया IIM अहमदाबाद में, तो सब स्टूडेंट्स थे। मैंने उनसे कहा आप आंख बंद करो और मुझे ये बताओ कि भारतीय किसान दिखता कैसे है। और मैंने एक स्टूडेंट से कहा आप हाथ खड़ा करके ज़रा बताइए। तो उन्होंने कहा साहब बुज़ुर्ग हैं, सफ़ेद रंग का साफ़ा पहनते हैं, लगभग 60 साल के हैं, आदमी हैं। तो मैंने कहा कंग्रेचुलेशंस, यू जस्ट डिस्क्राइब्ड अ दूरदर्शन एड फ्रॉम द 1960s। 58% of all farmers in India are women. But if you picture a farmer in your mind, you don't picture a woman. Am I right or am I wrong? 63% of all farm labor are women. आप उत्तर प्रदेश, बिहार में किसी भी खेत में जाएं, आपको दिखेगा आदमी भी हैं, बट आदमी से काफ़ी ज़्यादा तादाद में माताएं बहनें वहाँ पे अपना परिश्रम कर रही हैं। ये शिमला कुमारी जिसका नाम मैं दे रहा था, जो दिहाड़ी की मजदूरन थी, वो ऑफिसर ने उसको कहा कि ठीक है आप अनपढ़ हो, मैं आपको 2 गाड़ियाँ दूंगा, ऑफिसर्स दूंगा, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में दौड़िए और जितने महिलाएं काम कर रही हैं अनऑफिशियल लेबर में, आप उनके एफिडेविट सिग्नेचर या अंगूठे के निशान दीजिए और हम चेक करेंगे उन्होंने वाकई उतना काम किया और हम उनको इस साल के लिए बैक पेमेंट्स देंगे। और ये बिल्कुल ऊपर तक गया, CM तक गया, और उनको प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स से ज़ोर से बात करके 68 करोड़ रुपीस इस देश के सबसे गरीब औरतों के अकाउंट में जमा किया गया 1 साल बाद, बिकॉज ऑफ वन लेडी। आज हम सब लोग शिक्षा की बात करते हैं, हम सब लोग विकास की बात, कृषि की बात करते हैं, जन आंदोलन की बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई वरुण गांधी तो MP हैं, कोई मंत्री हैं, कोई बड़े पद पे है, हम एक साधारण नौजवान, एक साधारण इंसान क्या कर सकते हैं, हम क्या अकेले क्या कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं ग्रामीण शिक्षा पे जब काम कर रहा था तो मैंने देखा मुर्शिदाबाद जो ज़िला है बंगाल में, वहाँ पे एक पीढ़ी में 20 साल में एक शिक्षा का लगभग डबल स्तर हो गया है लिटरेसी रेट। मैंने वहाँ के सांसद से पूछा, मैंने कहा साहब इसका कारण क्या है। उनने कहा बाबर अली से बात करिए। मैंने कहा कौन है भैया बाबर अली। तो मैं मुर्शिदाबाद गया और एक छोटे से गांव भपटा में मैं एक नौजवान से मिला जिसका नाम था बाबर अली। जब बाबर 9 साल का था तो वो अकेला अपना गांव का बच्चा था जो स्कूल जाता था, लेकिन उसको बड़ा बुरा लगता था कि मेरे सारे जो दोस्त हैं, बाकी लोग हैं, वो कोई नहीं जाता। तो रोज़ जब स्कूल से आता था वो एक अमरूद के पेड़ के नीचे बैठ के उनको वो सिखाता था जो रोज़ उसने स्कूल में सीखा। धीरे धीरे बड़ा मशहूर हुआ कि एक इतना यंग टीचर है। तो अलग अलग गांव से भी लोग आने लगे, किसी ने चौक दिया, किसी ने ब्लैक बोर्ड दिया छोटा सा, किसी ने पेन और पेपर दिया। और हिंदुस्तान के मीडिया ने बाबर के बारे में जानकारी नहीं ली, लेकिन CNN ने उसके बारे में जानकारी ली, जो अमेरिका का एक बहुत बड़ा चैनल है। एंड CNN gave him the real hero of the year award along with 19 other people, $50,000।
और कोई होता तो वो खेत और खरीद लेता, ज़मीन खरीद लेता, पक्का मकान बनाता, क्योंकि उसके पिताजी एक बहुत गरीब जूट फार्मर थे, कच्चा मकान था। लेकिन बाबर ने कहा नहीं, ये पैसा शिक्षा के लिए आया है और ये शिक्षा में जाएगा। तो उन्होंने गांव में श्रमदान करके, लोगों से मुफ्त में लेबर लेके एक बहुत बड़ा स्कूल बनाया, इस ऑडिटोरियम से बड़ा। और उन्होंने कहा कि इस स्कूल में 3 रूल्स होंगे। एक, जो पढ़ेगा वो मुफ्त में पढ़ेगा, जो पढ़ाएगा वो मुफ्त में पढ़ाएगा, और तीसरा, जो पढ़ेगा वो अपने गांव जाके 2 और लोगों को वही पढ़ाएगा जो उसने रोज पढ़ाई की स्कूल में। अब जो अगल बगल के गांव थे उसमें कंपेटिटिवनेस तो होती है, स्पर्धा होती है। तो लोगों ने कहा भपटा कर सकता है तो भैया हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों पीछे रह जाएं। तो वहाँ के प्रधानों ने, बीडीसीज ने, जिला पंचायतों ने, सब लोगों ने मिलकर सबसे आग्रह करके सारा विलेज का फंड शिक्षा में डाला और बड़े बड़े स्कूल बनाए। आज वो जो 62 विलेजेस का ब्लॉक है, 15 years ago the literacy rate was 39% and today because of one नौजवान it is 100%। एक आदमी इतना बड़ा परिवर्तन कर सकता है। अक्सर हम सब लोग सोचते हैं जिंदगी में कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। आप किसी के भी दिल को खरोच करके देखो तो हर आदमी अपना दुखड़ा बताएगा, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, जिससे मैं प्यार करता था वो वापस नहीं करता था, अन्य शून्य। हम लोग कितना हम लोगों को जिंदगी ने दिया है, ये मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। श्रीकांत बोला नेत्रहीन पैदा हुआ था, अंधा पैदा हुआ था, एक सीतारामापुरम गांव आंध्र प्रदेश का। और श्रीकांत पढ़ने का बहुत इच्छुक था, वो साइंस पढ़ना चाहता था। स्कूल ने कहा आप साइंस नहीं पढ़ सकते बिकॉज आप अंधे हो, तो आप एक्सपेरिमेंट्स कैसे करोगे, आप सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे, तो आप भैया आर्ट्स करो। वो हैदराबाद हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने कहा बच्चा जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। श्रीकांत ने साइंस किया, उसको 99% मार्क्स मिले। उसके बाद उसने आईआईटी का एग्जाम दिया, उसको ऑल इंडिया 76 रैंक मिला, जो बहुत बड़ी बात है आईआईटी में। एंड ही गॉट इनटू आईआईटी दिल्ली टू डू मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आईआईटी दिल्ली रिफ्यूज टू टेक हिम बिकॉज दे सेड ये अंधा है, ये कैसे स्कूल जाएगा, ये कैसे जिएगा, ये नहाएगा कैसे, ये खाएगा कैसे, हम थोड़ी 5 आदमी इसके साथ डाल सकते हैं, सॉरी। उसने कहा कोई बात नहीं। He took one gap year, he took 1 year off and he applied to MIT, Massachusetts Institute of Technology, जो दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन है। And he was the first Indian to ever get a full scholarship at MIT. In MIT, he studied astrophysics, which is pretty tough, I mean, it's astrophysics. And he topped. He topped MIT, got a gold medal. He's the only Indian to ever top MIT. उसके बाद US गवर्नमेंट, नासा, गूगल, ऑरेकल, सब ने उसको कहा श्रीकांत आप हमारे लिए काम करो, मुंह बोले पैसे देंगे। उसने कहा नहीं, अब जो अमेरिका से मुझे लेना था मैंने ले लिया। वो हिंदुस्तान वापस आया। He started an industry called Bollant Industries. Today it is a 700 crore rupee industry. 3,000 people work for him, out of which 1,000 people are totally blind. तो जिसको भगवान ने आंख की रोशनी नहीं दी, उसने हिम्मत करके इतने लोगों की जिंदगी में रोशनी पैदा की। आप और हम लोग तो फिर भी बहुत ठीक हैं। मैं थोड़ा सा राजनीतिक सुधार के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखिए, मैं सांसद बना 10 साल पहले, और मैंने 10 साल से संसद की कभी तनख्वाह नहीं ली। आई डिड नेवर टुक अ सैलरी फ्रॉम पार्लियामेंट। और हर महीने मैंने सैलरी डोनेट की, या तो वो किसान परिवार जहाँ उन्होंने आत्महत्या की, मुख्य कमाने वाले ने, या किसी शहीद के परिवार को, या किसी मछुआरे के परिवार को, या बुनकर के परिवार को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरी सोच ये थी कि हम जैसे लोग जिनको पैसे की ज़रूरत नहीं है,
हम लोगों को देश के ऊपर एक बोझ बनने का कोई अधिकार नहीं है। पिछले साल मैंने एक चिट्ठी लिखी उन सांसदों को जिन्होंने घोषित संपत्ति, डिक्लेयर्ड एसेट्स अपने 25 करोड़ से ऊपर किए, क्योंकि मुझे लगा 25 करोड़ काफ़ी ठीक ठाक संपत्ति है। और मैंने उनको चिट्ठी लिखी, ऐसे 138 लोग हैं लोकसभा राज्यसभा, और मैंने उनसे कहा कि आप वॉलंटरली, आप स्वाधीनता से अपने सैलरी को गिव अप करो। लेकिन मुझे थोड़े दुख के साथ ये बोलना पड़ रहा है कि एक भी व्यक्ति की चिट्ठी मुझे वापस नहीं आई, और सेंट्रल हॉल में जो मेरे से थोड़े बहुत लोग बात भी करते थे वो भी बंद हो गया। उसके बाद मैंने ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे मैं जाता हूँ, और यहाँ बहुत ज़्यादा ताकत है इस कमरे में। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि आपकी ताकत क्या है। मेरी माँ एक जगह में रहती है दिल्ली में, उसको जंतर मंतर रोड कहते हैं। जंतर मंतर रोड की खासियत क्या है कि पूरे देश के लोग आके वहाँ अपना विरोध प्रदर्शन भी करते हैं जंतर मंतर रोड पे। इट्स अ वेरी कलरफुल प्लेस। और एक दिन, और मैं अक्सर वहाँ जाके उनसे मिलता भी हूँ, क्योंकि सीखने को भी बहुत मिलता है, हो सकता है आप किसी की मदद भी कर पाओ। एक दिन मैं वहाँ से आते हुए ड्राइव कर रहा था, मैंने देखा तमिलनाडु के बहुत सारे किसान वहाँ बैठे, बहुत बुरी स्थिति में, करीबन 5000 आदमी सिर मुंडवा के, महिलाओं ने सिर अपना हेड शेव करके अपना पेशाब पी रहे थे, अपने गुस्से को दिखाने के लिए बहुत मतलब मुश्किल में अपना गुस्सा दिखा रहे थे। मैंने उनको प्रॉमिस किया कि मैं पार्लियामेंट में आपकी बात रखूंगा। अगले दिन मैंने टीवी ऑन किया तो नॉट योर टीवी बट अनदर टीवी, बट नेक्स्ट टाइम आई विल वॉच योर टीवी ऑल्सो। तो मैंने ऑन किया और मैंने देखा कि तमिलनाडु एमएलएज स्पेशल सेशन रख रहे हैं। मैंने सोचा ये बहुत अच्छी बात है, और अगर मेरे प्रदेश के 5000 किसान दिल्ली में उस हालत में है तो मैं भी चाहूँगा एक स्पेशल सेशन रखना उनके बारे में सोचने के लिए। लेकिन वो स्पेशल सेशन किसानों के लिए नहीं था, वो स्पेशल सेशन था एमएलएज के सैलरीज को डबल करने के लिए। मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे लगा ये तो एक पाप है। और अगले दिन मैंने पार्लियामेंट में एक भाषण दिया जिसमें मैंने एक ही चीज़ कहा कि एमपीज शुड नॉट हैव द राइट टू एरोगेट टू themselves अ सैलरी इंक्रीज बाय themselves एट विल। जब से मैं लोकसभा में हूं तो 4 बार एमपीज की सैलरी बढ़ गई है। ऐसा नहीं कि सारे एमपीज अमीर हैं, बहुत सारे ईमानदार हैं, गरीब हैं, उनको आवश्यकता है। लेकिन मैं इस प्रथा के खिलाफ हूं जिसमें आप केवल अपना हाथ खड़ा करके अपनी सैलरी इंक्रीज कर सकते हो। ये मुझे गलत लगता है, ये नैतिकता के विपरीत है। मैं ऐसे बहुत सारे फोरम्स में आता था, अपनी बात रखता था, और मैं एक ही चीज़ कहता था कि अगर आपको लगता है कि एक संवैधानिक संस्था को निर्णय करना चाहिए कि एमपीज को कितने पैसे मिले, उनके परफॉर्मेंस को देख के, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देख के, कॉस्ट ऑफ लिविंग को देख के, अन्य शून्य, तो आप ज़रूर फेसबुक, ट्विटर पे इसके बारे में किसी जिम्मेदार आदमी को लिखें। और मैं इसके बारे में भूल गया कि शायद किसी ने किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा। एक दिन मुझे देश के वित्त मंत्री का फ़ोन आया। उनने कहा, भैया ये सब लोगों को बोलना बंद कर दो, क्योंकि इतने लाखों लोगों के हम लोगों को रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं कि हम लोगों के लिए बहुत कठिनाई है। और मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि पिछले साल के बजट में ही इंट्रोड्यूस्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, और आज अब एमपीज अपनी सैलरी खुद नहीं तय कर सकते, अब एक संस्था तय करेगी बाकी सारी चीज़ों को देख के। लेकिन वो मेरी ताकत नहीं थी, वो आपकी ताकत थी, जिसने ट्विटर पे डाला, फेसबुक पे डाला, जहाँ भी डाला। हमारे देश में पिछले 20 साल से
पार्लियामेंट में 64% जो कानून पारित हुए हैं, 64% पिछले 20 साल से, वो बिना 1 मिनट डिस्कशन के पारित हुए हैं, नॉट इवन 1 सेकेंड डिस्कशन. And 71% of all laws and bills that have been passed in Parliament have been passed without sending to any standing committee or consultative committee over 20 years. So you can't even blame one party, you can blame everybody. ये पार्लियामेंट के विपरीत है. हम लोग जब बात रखते हैं, कोई हमसे तीखा सवाल करता है, तो एक राजनीतिक लोगों की आदत बन गई है बोलना कि हम तो चुनाव जीते हैं भैया, हम तो जनप्रतिनिधि, आप हमसे कैसे ये बात कर सकते हो. लेकिन जनप्रतिनिधियों का क्या मतलब रह गया है. फारूक साहब अभी श्रीनगर से चुनाव लड़े, उपचुनाव, उनको वहां के 4.6% वोट मिला बस. और मैं किसी दूसरे के ऊपर क्यों उंगली उठाऊं. इस चुनाव में मुझे भी 50% वोट नहीं मिला, पहले चुनाव में मिला, इस पर नहीं मिला. और मेरे दिल पे ये बोझ था. मेरे सामने जितने लोग चुनाव लड़े, कांग्रेस, सापा, बसपा, मैंने तीनों को फोन किया और मैंने कहा देखिए चुनाव में जीत हार लगती रहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हो सकता है आप इस क्षेत्र के बारे में वो जानकारी रखें जो मैं नहीं रखता, क्योंकि मैं तो बाहर का हूं. हो सकता है आपका कुछ करने की योजना है जो मैं शायद ना जान पाऊं, तो आप अपने घर पे एक चाय रख लीजिए, मैं आऊंगा और क्यों ना हम सब मिलकर इस क्षेत्र को साथ मिलकर चलाएं. ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई जीता है कोई हारा है, क्योंकि समय आ गया कि हम राजनीति को एक युद्ध के तरह ना करें. राजनीति में स्पर्धा की गुंजाइश है, लेकिन नफरत और युद्ध की कोई गुंजाइश नहीं है. ये मेरे एक सबमिशन है. हम सब लोग बात करते हैं करप्शन की. हर व्यक्ति आज पॉलिटिक्स में कहता है साहब बहुत करप्शन है, लेकिन अगर आप किसी से पूछो कि साहब करप्शन खत्म कैसे होगा, तो वो कहता है करप्शन खत्म होगा जब अच्छे लोग आएंगे. लेकिन मैं इसको अधूरा सच मानता हूं. क्यों? क्योंकि एक सिस्टम में, एक टूटे हुए सिस्टम में एक अच्छा आदमी भी बुरा बन जाता है. इसका आंसर क्या है? मैं थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं. आज हम लोग भुवनेश्वर में, अगर यहाँ एक सड़क बन रही है या पुलिया बन रही है या कुछ भी बन रहा है, अगर एक आम आदमी उससे सैटिस्फाइड नहीं है और वो जानना चाहता है कि कौन ठेकेदार कर रहा है, क्यों ये काम ठीक से नहीं हो रहा, वो कहाँ जाए, किससे बात करे? इंफॉर्मेशन ब्लॉकेज है हमारे देश में. यूरोपियन यूनियन ने एक बहुत अच्छा काम किया है. उन्होंने क्या किया, वहां जितने पब्लिक गुड्स पे एक्सपेंडिचर होता है, डैम्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, रोड्स, रेलवे स्टेशंस, वहां क्या करते हैं, हर चीज की खुली जानकारी डे बाय डे एक प्लेटफॉर्म पे डालते हैं. उस प्लेटफॉर्म का नाम है मॉनिथॉन, मॉनिटर और मैराथन मिला के, और आप जरूर उसको देखिए. और इतनी जानकारी उस पे है, एक तो आप प्रश्न पूछोगे तो 24 घंटे आपको बाय लॉ जवाब मिलना है. और अगर एक रोड बन रहा है 50 किलोमीटर्स का, तो रोज कितना पोर्शन बना है, वो मजदूर का सेल नंबर भी उस पे है. मतलब इतना इंफॉर्मेशन देते हैं. तो जब आप इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी लाओगे, सूचना की पारदर्शिता लाओगे, तो हमारे देश में वैसे ही भ्रष्टाचार बहुत कम हो जाएगा. ये मेरा आग्रह है. महिलाओं की बात करें, हर दल, हर व्यक्ति महिला आरक्षण की बात करता है कि महिला आरक्षण होना चाहिए. मैं भी चाहता हूं होना चाहिए, पर कैसा महिला आरक्षण होना चाहिए? आप पंचायतों में है आरक्षण, आप किसी भी गांव में जाओ, मैं अपने क्षेत्र में गांव में जाता हूं, कोई महिला मंच पे नहीं मिलती. आपको हट्टे कट्टे आदमी मिलेंगे मंच पे आपके बगल में बैठे, और आप पूछो भैया प्रधान जी कहाँ हैं, तो एक महिला बेचारी जमीन पे बैठे मिलेगी, घूंघट है साड़ी का उसके सिर के ऊपर,
वो कहता है साहब वो प्रधान जी हैं। तो आप उसके तरफ देखो, भैया आप कौन हो? तो कहे साहब मैं प्रधानपति हूं। मैं क्या प्रधानपति हो भैया? अब तो साहब पूरे मैं देश में देखता हूं बीडीसी पति, प्रधानपति, सांसद पति, विधायक पति, तो बड़ा एक बीमारी चल रही है। और अब तो नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन भी पहले अब एक वैध शब्द बन गया है। इट्स बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड, प्रधानपति। देखिए, हम महिला आरक्षण चाहते हैं, लेकिन हम वो महिला आरक्षण नहीं चाहते जो केवल एक बहाना बने आदमी को अपने पत्नी या माँ या बहन को लड़ाने के लिए। हम वो महिला आरक्षण चाहते हैं जिसमें एक औरत अपने हिम्मत पे और अपने मेहनत पे, अपने प्रतिभा पे आगे बढ़ पाए। हम लोग युवाओं की बात करें, इस मंच पे एक युवा बैठे हैं और मैं तो अपने आप को अब युवा नहीं कह सकता, तो बाल सफ़ेद होने लगे हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि राजनीति में हर बात चलती है कि भाई युवा आने चाहिए, युवा आने चाहिए। अब दुनिया में आ भी रहे हैं। सेबेस्टियन कुर्ज जो ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं वो 31 साल में बने हैं। जसिंडा आर्डर्न जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है वो 38 साल में बनी है। हमारे देश में क्या हाल है? हमारे देश में फैक्चुअली ये है कि 1952 जो फर्स्ट पार्लियामेंट थी उसमें द एवरेज एज ऑफ एन इंडियन वाज 44। In 2014, the average age of an Indian is 33. मतलब average age 11 साल घट गई है। लेकिन in 1952, the average age of an MP was 46. And today the average age of an MP in 2014 was 59. तो देश तो युवा हो रहा है, लेकिन राजनीति बुजुर्ग होती जा रही है। मैं इसमें कोई बुराई नहीं मानता, मैं केवल ये एक बात रख रहा हूं। हम लोग बात करते हैं लोकतंत्र गहरे करने के लिए। आप लोग में से बहुत सारे लोग एक मुद्दा उठाना चाहते हैं। मान लीजिए कि संवाद एक उड़ीसा में एक पोल करता है या लोगों को कहता है कि आपको कौन सा उड़ीसा का सबसे प्रासंगिक मुद्दा लगता है, और लोग जवाब देते हैं। वो जवाब उड़ीसा तक ही आज रहेगा, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। वो दिल्ली के पार्लियामेंट पे उस पर क्यों नहीं कुछ हो सकता? इस दुनिया के 70 देशों में पेटिशन सिस्टम है। इंग्लैंड में सिस्टम क्या है कि 10,000 आदमी पेटिशन पे साइन करें, केवल 10,000, चाहे वो ई पेटिशन हो चाहे वो पेटिशन साइन किया हुआ हो, तो पार्लियामेंट्री ऑफिस प्राइम मिनिस्टर से 48 घंटे में जवाब मिलना अनिवार्य है। और अगर 1 लाख लोगों ने साइन किया, इफ 1 lakh people sign a petition in England and submit it to Parliament, by law there is a 1-hour discussion in Parliament in the next session on that issue. हमारे यहाँ आबादी थोड़ी बड़ी है। आप 1 लाख ना करिए, आप 5 लाख कर लीजिए, आप 10 लाख कर लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से संसद भवन में जनता की आवाज की गूंज होनी चाहिए, केवल 543 लोगों की गूंज नहीं होनी चाहिए। हम लोग बात करें असमानता की। देखिए, जब ब्रिटिश इकोनॉमिक गज़ेट था तो उन्होंने उस समय राजाओं महाराजाओं का समय था। 1% हिंदुस्तान 22% संपत्ति का मालिक था। आज राजा महाराजा तो बहुत कम रहे, लेकिन आज 1% हिंदुस्तान 60% संपत्ति का मालिक है। असमानता मेरे को चिंतित बहुत करती है। मैं महाराष्ट्र में गया था, मैंने पानी पे बहुत काम किया। मैं एक छोटे से जिले में गया था जिसका नाम है लातूर, बीड़, जालना, शोलापुर। वहां मैंने देखा कि पानी की इतनी समस्या थी
कि मुख्यमंत्री ने एक पानी का ट्रेन भेजा, बहुत अच्छा काम किया, 0.5 मिलियन लीटर पानी के साथ। वो ट्रेन को 16 जगह लूटा गया पानी के लिए, 3 लीटर, 5 लीटर, 8 लीटर, 12 लीटर के लिए। उसके बाद मैं मुंबई IIT गया लेक्चर देने। मैंने एक होर्डिंग देखा पवाई में। उस होर्डिंग में लिखा था एक्वेरिया ग्रैंड, एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें 200 अपार्टमेंट होंगे और 200 फुल साइज स्विमिंग पूल होंगे। मुझे लगा ये कैसा अजीब मजाक है। जिस प्रदेश में लोग पानी के लिए ट्रेन को लूट रहे हैं, उस प्रदेश में कोई बिल्डिंग में 200 फुल साइज स्विमिंग पूल लगा रहा है। मैंने स्टडी किया इस पे। 28% महाराष्ट्र की आबादी शहरों में रहती है, 28%। लेकिन आपको पता है वो कितना पानी पीते हैं प्रदेश का? 82%। 20, और उड़ीसा का भी वही होगा। आप देखिए, आप पूरे देश में किसी भी स्टेट को देखिए तो जो अमीर है उसका हिस्सा गरीब से लगभग 4-5 गुना हर चीज में है। यह हमारे देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। जब भी किसानों की बात आती है तो लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं साहब किसानों को आप पैसे दे रहे हो, आप उनको बेकार कर रहे हो, आप उनको मुफ्त खोर बना रहे हो, आप इनको आलसी बना रहे हो। मैं आपको एक स्टैटिस्टिक बोलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं लोग इस बात को याद रखें। वेरी फ्यू पीपल नो दिस। आई फाइल्ड एन RTI। अगर आप 1952 से लेकर 2014 तक सारे पैसा एड अप करो जो देश के 30 सबसे बड़े उद्योगपतियों का पैसा माफ हुआ है, वर्सेस जो देश के संपूर्ण सारे किसानों का पैसा माफ हुआ है। ऑन वन हैंड यू हैव 30 फैमिलीज, 30 इंडस्ट्रियलिस्ट जिनका पैसा 52 से 2014 तक माफ हुआ है, एंड ऑन वन हैंड यू हैव 100% फार्मर्स ऑफ इंडिया जिनका पैसा बैंकों ने माफ किया है। आपको पता है सारे किसान मिला के केवल 29 औद्योगिक परिवार का 18% है। If this is not a shameful statistic, I don't know what is. इससे ज्यादा क्या शर्मनाक स्थिति हो सकती है? हम लोग असमानता देखते हैं, असमानता को पैदा करती। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक आम इंसान के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक आम छोटे शहर के एक आम आदमी के लिए सबसे प्रतिष्ठित नौकरी कौन सी है? आप बताइए। सरकारी नौकरी, राइट? IAS के नौकरी, वो तो सबसे प्रतिष्ठित नौकरी एक आम आदमी के लिए। हम लोग जब देखते हैं कि IAS ऑफिसर्स, सर्विंग IAS IPS ऑफिसर्स, तो हम हमेशा सोचते हैं कि कोई दुर्गापुर से आया है, तो कोई ढेंकानाल से आया है, तो कोई नंदुरबार से आया है, तो कोई बलिया से आया है। बट ऐसा नहीं है। मैंने एक स्टडी की, इस पे ऊपर मैंने आर्टिकल भी लिखा। क्या आप जानते हो कि आज 2015 तक 81% of all serving IAS officers have grown up in the 20 biggest cities of India. सोचिए, 81% of all serving IAS officers have grown up and been educated in the 20 biggest cities of India. Sorry, 25 biggest cities of India. And 86% of them have been educated in private schools. हम क्या अपेक्षा उनसे करें गरीबों की बात सुनने की? चलिए वो भी छोड़िए, शिक्षा कहां से आती है? असमानता की बात करें। हमारे देश में 15.5 लाख स्कूल हैं। 15.5 लाख स्कूल में जो पॉश बोर्ड्स हैं, जो बोर्ड्स अच्छे माने जाते हैं, वो IB है, CBSE है और ICSE है, जो अच्छे माने जाते हैं। क्या आप जानते हो ये सारे बोर्ड्स का अगर मिला के देखा जाए तो 15.5 लाख स्कूल्स में से कितने स्कूल हैं इन तीनों बोर्ड को? केवल 1.5%। बस
नहीं तो स्टेट बोर्ड, मदरसा बोर्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन क्या आप जानते हो इस समय जो IIM में बच्चे पढ़ रहे हैं वो कितने ICSE, CBSE और IB के हैं? 99%। कितना IIT के हैं? 96%। इसका मतलब आप हमारे देश में अगर टॉप 1-2% ब्रैकेट में हैं तो आपको बड़े सपने देखने का अधिकार है, और अगर आप उसमें नहीं आते तो आप अपने सपने को सीमित कर लो, क्योंकि आपके रास्ते बहुत कम होते जाते हैं। जब आप IIT का एग्जाम देते हैं तो लगभग हर आदमी IIT के एग्जाम देने के लिए ट्यूशन लेता है। क्या ये सही है कि गलत है? ये ट्यूशन लगभग 1 या 2 साल चलते हैं और इसमें लगभग 3 से 4 लाख रुपए खर्च होते हैं। 12 लाख लोगों ने पिछले साल IIT एग्जाम दिया, 11,000 लोगों को एंट्री मिली, उन बाकी सबके सिर पर 3 से 4 लाख रुपए का लोन आ गया। हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करते हैं देश में। क्या आप जानते हो इस समय एजुकेशन NPA 7,000 करोड़ है देश में? एजुकेशन NPA मतलब जो लोगों ने बच्चों को पढ़ाने के लिए लोन लिया और वो नहीं चुका पा रहे, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि ये शिक्षा की प्रणाली का हल कैसे निकलेगा। आप किसी से बात करो, लोग कहते हैं वी शुड स्पेंड मोर ऑन एजुकेशन। अरे भैया, इफ वी कुड स्पेंड मोर ऑन एजुकेशन वी वुड। कोई सरकार ऐसी तो है नहीं देश में जो कहती है भैया हमको सबको अशिक्षित ही रखना है। सवाल यह है, पैसा अभी जितना है उतना है, तो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन क्या है? मेरा एक सबमिशन आप लोगों को है। अगर हम इस देश के टीचर शॉर्टेज को देखें, मुख्य दिक्कत क्या है? भवन है हर गांव में, टीचर्स नहीं है। अगर हम लोग केवल एक काम करें, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है आप इससे वाकिफ ना हो, पसंद ना करें, अगर हम लोग सारे बेरोजगार पोस्ट ग्रेजुएट्स को देश में लें, बेरोजगार पोस्ट ग्रेजुएट्स को लें और केवल 20% के सामने हाथ जोड़ें कि 1 साल के लिए आप किसी गांव में जाके 1 साल के लिए पढ़ाइए, तो 1 दिन में हमारी टीचर शॉर्टेज खत्म हो जाएगी देश में। लेकिन हम लोगों को कुछ सोचना पड़ेगा कि स्टेटस को से नहीं काम चलेगा। हम लोगों को कहा गया कि एक गांव गोद लीजिए। हम गए, हमने देखा गांव तो ठीक है, स्कूल में बच्चा नहीं आ रहा। जितना बच्चा स्कूल के रोल्स पे लिखा है, आधा बच्चा भी नहीं आ रहा। मैंने टीचर से पूछा क्यों नहीं आ रहे भैया बच्चे? उन्होंने कहा साहब खेत में मजदूरी कर रहे हैं, माता पिता का पेट पाल रहे, अपना पेट पाल रहे, क्या करे बच्चा? उनका भी दोष नहीं है। तो हमने एक मॉडल स्कूल वहां बनाया और मैं चाहता हूं आप आके उसको एक बार जरूर देखिए। उसका हमने एक स्लोगन दिया, लर्निंग बाय डूइंग, सेलिंग एंड अर्निंग। और हमने स्कूल को ही एक एग्री बिजनेस बना दिया। हमने कहा आप पढ़ेंगे, 8 बजे से लेकर 1 बजे तक आप पढ़ेंगे और 1 बजे से लेकर 4 बजे तक हम आपको कुछ सिखाएंगे ताकि आप उसको कर सको और हाथ के हाथ कुछ बेच सको, हाथ के हाथ पैसा कमा सको। और हम लोगों ने प्रॉफिट शेयरिंग की बच्चों के साथ। वहाँ पे आंवला बहुत होता, आंवला का पेड़ आप समझते हैं, तो आंवला का मुरब्बा बनता, आंवला की दवाई बनती है, आंवला की टॉफ़ीज़ बनते हैं। हमने वो काम शुरू कर दिया। हमने 2-3 अलग अलग काम किए और पता है हमने क्या देखा कि ना केवल 100% बच्चे स्कूल आने लगे, लेकिन इनके जो माता पिता अशिक्षित थे वो वापस स्कूल आने लगे, क्योंकि उनको लगा भैया मजदूरी से तो अच्छी कमाई यहाँ हो जाएगी, तो कुछ सीख भी लो और कुछ कमा भी लो। तो दिस इज व्हाट वील हैव टू टेक इनटू अकाउंट। हाँ जी, सुल्तानपुर एक गांव है, वल्लीपुर। हम लोग अंत में एक बात मैं रखना चाहता हूं। जब मैं सांसद बना दूसरी बार,
पहली बार मैं अलग क्षेत्र से बना, दूसरी बार मैं अलग क्षेत्र से बना। मैं गांव-गांव जाता था, मैं लोगों से पूछता था आप क्या चाहते हैं, आप सोलर लाइट चाहते हैं, आप हैंड पंप चाहते हैं? लोग कहे साहब हम भूखे हैं, हम भूखे हैं, हम खाना चाहते हैं। और मेरे के दिल पे लगा कि एक पत्थर आ गया, क्योंकि मैं तो कभी सोचा नहीं था कि एक दिन हमारे देश का एक व्यक्ति हमको बोलेगा कि हम साहब भूखे हैं। तो हम लोगों ने एक काम शुरू किया, हम लोगों ने एक रोटी बैंक शुरू किया, और मैं चाहता हूँ आप भी ऐसा कोई एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का काम शुरू करें। हमने क्या किया, हमने लोगों से काम कुछ नहीं चाहते, हमने मैरिज हॉल से कहा, हमने होटल से कहा, हमने रेस्टोरेंट से कहा, हमने आम लोगों से कहा कि आप केवल जो रोटी बचती है आपके घर में, जो आप फेंकोगे, वो आप हमको प्लीज़ दे दो। हमने 4 सेकेंड हैंड गाड़ियाँ की, हमने उनको कहा कि 17 कलेक्शन पॉइंट्स हैं, आइए और हमको रोटी दे दीजिए। उसका हमने नाम दिया रोटी बैंक। और मैंने कहा अपने पैसे से हम 2 सब्जी दे देंगे उनको जो भूखे लोग हैं। आज 2 साल हो गए, हमको 1 लाख रोटियां रोज मिलती हैं, 100,000 रोटीज, और हम 2 सब्जी देते हैं, और हम दोनों टाइम लगभग 15-15 हजार लोगों को खाना रोज देते हैं फ्री। अगर हम लोग ये काम उड़ीसा में शुरू करें, मैं नहीं कह रहा हूं यही काम, कोई भी ऐसा काम, देखिए ये देश जो है ये किसी लकीर का नाम नहीं है, ये देश हमारे सीने में जिंदा है। ये भूगोल से इसको ना देखिए, इसको भावना से देखिए। आप फिल्म में ताली बजाते हैं, उरी फिल्म का, और आप जाते हैं क्रिकेट मैच में ताली बजाते हैं, इससे कुछ नहीं फायदा होना देश का। देश का फायदा तब होगा जब आप देश के भविष्य को उज्जवल करने के लिए थोड़ा सा हाथ पैर खुद हिलाएंगे। आपके घर में लोग काम करते हैं, उसमें से 50-70% अनपढ़ हैं। आप हर रोज 1 घंटा उनको दीजिए और उनको केवल सिखाइए, पढ़ाई खुद। 3 साल में वो सीखने लगेंगे, आप उनको एक नया जीवन प्रदान करेंगे। ट्री प्लांटेशन करिए, अपने जन्मदिन पे, मॉनसून्स पे एक फलदार वृक्ष लगाइए, इस धरती का बोझ कम करिए। All of you here are very successful people in your own fields. But the measure of success is not money and position alone. The measure of success is a life with deeper meaning. एक ऐसा जीवन जिसका एक गहरा अर्थ हो, जिसका एक मतलब हो, जिसका एक संकल्प हो। और मेरी प्रार्थना आपसे यही है कि आप सब लोग मेरे जैसे लोगों के साथ मिलकर कुछ ना कुछ नया सोचें देश के लिए। केवल राजनीति से देश का हल नहीं होगा, नीतिगत सुधार से भी अलग देश का हल नहीं होगा। हम लोगों को जब देश पे हर कदम को नापते हुए अपने कदम उसमें सम्मिलित करें, तब देश का हल होगा। आई रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट सम फॉर्म ऑफ चैरिटी, सोशल एंटरप्राइज, और देश के आखिरी आदमी के बारे में सोच के हम लोग अपने हर कदम को नापें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much, Shri Gandhi. There was some very strong and very motivating stories, especially the story of the visually impaired. Shri Kant literally brought me to tears, and some of those statistics were mind-boggling. I'm sure the audience wants to ask you a few questions, but I will take the opportunity to start by asking you a question myself. So there have been very strong rumors, बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं कि आप कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं, और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि प्रियंका, राहुल और वरुण
ये 3 मिल जाए तो विल बी अ फॉर्मिडेबल फोर्स इन उत्तर प्रदेश. तो ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये इट्स ऑल ओवर द न्यूज़ एंड सोशल मीडिया. सो व्हाट वुड यू? I will only say this, that I learnt many, many years ago to trust the media as little as possible. हेलो. I said मैंने बहुत बहुत वर्ष पहले ये ध्यान दिया और ये संकल्प लिया कि मीडिया के ऊपर कम से कम भरोसा किया जाए तो अच्छा है. हेलो. Yeah. Good afternoon, sir. Yeah. Sure. And I would just like to request those who are asking questions to keep it as brief as possible, sure. So that he can take as many questions. Humble submission is, if we can keep the questions kind of related to my intervention. Sure. Because otherwise it'll go a little over the place. Good afternoon, sir. आपने तो मेरे को एक बॉडी लाइन बोल कर दिया बिल्कुल. जी. Good afternoon, sir. Sir, huge fan of yours. Thank you, sir. So, sir, my question is plain and simple. So, the education that we are providing to rural children. Sir. So, how far can we go as citizens to check that they are being given the right information? Because a lot of the students, a lot of the teachers we find there, they're not that qualified. Like some of them. So, for instance, like I spoke about teacher training, like I spoke about just getting unemployed postgraduates and getting them to maybe make a national teachers mission, you know, like a rural mission. You know, if we can make a national teaching service, like an IAS, if we can make a national education service, a national medical service, then I think that we can up the quality, which is, I think, what you're asking. See, we've spent 86% of all funds in education on National Education Mission on just building buildings. Now, you know and I know that just building a building does not constitute a school. A school is the learning that is imparted within it. So, thank you. Good afternoon. Yes, good afternoon. Hello, good afternoon, Varun ji. May I just ask you to just say your name and where you're from as well? Myself Naushad Sheikh, I am from Cuttack, Odisha. जी. It's a neighboring city of Bhubaneswar. जी, जी. मेरा एक सवाल आपसे है. पिछले 4 साल में हमने बीजेपी के जो केंद्र की सरकार है उसमें देखा है. मैं ओडिशा निर्माण की बात कर रहा हूँ. ये कॉन्क्लेव ओडिशा निर्माण पे है. तो भारत निर्माण की बात कर रहे हैं. पिछले 4 सालों में बीजेपी सरकार और खासकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि देश में कुछ विकास नहीं हुआ 72 साल में. आप इस बात से सहमत हैं? और उन्होंने कहा है देश में जो भी गलत हुआ है उसके लिए नेहरू गांधी फैमिली, स्पेशली हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जिम्मेवार है. क्या इस बात से आप सहमत हैं? ऐसे है कि पहली बात तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें एक प्रोपेगेंडा के शिकार आप हुए हैं. मैंने स्वयं उनके कई भाषण सुने जिसमें उन्होंने कहा है, और एक लाइन तो आपने भी सुना है, जो उन्होंने कहा कि आज जो देश की स्थिति है और जो सकारात्मक काम हुए हैं, तो ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री आज तक नहीं आया जिसने देश के लिए एक बड़ा सपना ना देखा हो, जिसने कुछ सकारात्मक किया ना हो. तो इसमें सबका योगदान है. जहाँ तक सवाल है कि देश में विकास की कमी रही है, तो इसमें कुछ हद तक ये सच है कि देश में विकास की कमी तो रही है साहब. ये तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं. अब इसका दोष किसको देना है, इसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि किसी को भी दोष देने से या किसी को भी लाभ देने से या किसी को भी अच्छा बोलने से मैं समझता हूँ कि काम से काम मतलब रखा जाए. तो मैं एक नौजवान के नाते यही कहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति कभी कभी एक उग्र रूप लेती है, लेकिन कभी आप संसद आएँ तो आप देखेंगे लोग एक बहुत प्यार मोहब्बत से आपस से मिलते हैं. तो कभी मुझे लगता है कि जी, थैंक यू जी साहब. I'll take all the questions. Yeah, I want to ask one question that is regarding the inequalities of the nation. Especially, I want the uniform tax code. The national average availability of cash, land, gold is to be taxed, and all sorts of tax forms should be withdrawn. I think perhaps this can resolve the various issues, whatever debated here at. Hello, yes. I think perhaps uniform tax code can solve all sorts of inequalities, economic inequalities, whatever debated
by yourself. The national average availability of cash, land, gold is to be taxed, and all sorts of taxation should be withdrawn. This can check all sorts of corruption. Perhaps Thank you. I need to sit with you थोड़ा सा अलग से for this. सर थोड़ी पॉलिटिक्स की बात करें आपकी अगर परमिशन हो तो एक सेकंड पॉलिटिकल एक सेकंड जी मैं आपके पास आता हूँ. My heartiest compliment for a wonderful speech. Thank you जी. There is a small question regarding this 1% of the students who are in the top IAS, IIT Yes. and all, they come from the private schools. Sir. Now today, most of the parents decide to send the children to private schools because of the importance of English. Absolutely. Even I'm talking to you in English, and I'm very happy that I can talk in English. Now this happiness is something which is also, which also makes me a little uncomfortable after particularly having heard you. Sir. But what's the solution? Sir, the solution is, it's an excellent question. Let me thank you for asking it. The solution is to increase the size of the cake, not to cut it into more pieces. So when we do capacity building, let's say today 1.5% of schools are following these very progressive curriculums. If we can increase this even to 25%, you'll find that the country will go forward exponentially. I want to take this opportunity to just say one thing. आप सबने सुना है कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया होती थी, राइट? पर क्या आप जानते हो ये नाम किसको हिंदुस्तान ने दिया? ये नाम वास्को ड गामा ने दिया जब वो कैलिकट आए थे. और वो कैलिकट आए थे किस चीज के लिए? अनफिनिश्ड कॉटन और सिल्क के लिए, कैलिको के लिए और सिल्क के लिए. उस समय हिंदुस्तान वाकई सोने की चिड़िया थी. आप अलग अलग जगह जाएं, चंदेरी जाएं, भदोई जाएं, अलग अलग जगह जाएं, तो आप देखो जो बूम टाउन्स उस समय थे टेक्सटाइल में, टेक्सटाइल वाज 44% ऑफ इंडियाज जीडीपी. टुडे टेक्सटाइल इज अंडर 4% ऑफ इंडियाज जीडीपी. बांग्लादेश का इस समय जो इकोनॉमिक बूम हुआ है वो टेक्सटाइल के कारण हुआ है. दे आर स्पेंडिंग 17% ऑफ जीडीपी ऑन टेक्सटाइल एंड देयर इज अ इकोनॉमिक्स बिहाइंड दिस. मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ. 24 लाख रुपए स्टील की एक सस्टेनेबल नौकरी पैदा करता है. 24 लाख रुपए स्टील की एक सस्टेनेबल नौकरी पैदा करता है और 1 लाख रुपए हैंडलूम की 24 सस्टेनेबल नौकरी पैदा करता है. तो हम लोगों को क्या करना चाहिए आप मेरे से बेहतर जानते हैं. यस जेंटलमैन. या सर विथ योर ड्यू परमिशन एक पॉलिटिकल सवाल आपसे रखना चाहूंगा. ना रखे तो अच्छा है, बट करना चाहें तो पूछ लीजिए. सर आपने कुछ देर पहले कहा कि चाय के ऊपर चर्चा करते हैं आप पॉलिटिकल ओपोनेंट के साथ. मैंने ऐसा तो सर ये बिल्कुल नहीं आपने कहा आपने इलेक्शन जो लोग आपसे हाँ, हार मैं- I गए reached out उनको to आपने them. फोन किए जी, कि चलो चाय पे चर्चा करते हैं. कभी ऐसा हुआ राहुल गांधी जी से या प्रियंका गांधी जी से आपकी बात हुई? इट्स अ वेरी फूलिश क्वेश्चन भैया. Okay. जब हम लोग देश के बारे में बात कर रहे हैं आप कैसे बच्चों वाली प्रश्न पूछ सर रहे हैं? इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा. सर वन सेकंड. देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ भैया. हम लोग यहाँ पे देश के भविष्य के बारे में एक नींव बनाने की बात कर रहे हैं, है ना? We have to rise above this childishness. Frankly, it's very disheartening for me that one young man asked a question, it was such a silly सर, question. मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ था सर. मैंने इसीलिए ये सवाल आपसे पूछा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट के साथ बात करेंगे तभी देश का कुछ मुद्दा सॉल्व हो सकता है क्या? क्योंकि राहुल गांधी बोलते किससे, हैं पाकिस्तान से? नहीं, फिर? हमारे देश के अंदर, हमारे देश के देखिए- अंदर जो पॉलिटिकल ओपोनेंट है, जैसे कि राहुल गांधी बोल रहे हैं चौकीदार सुनिए, चोर है, ऐसे। नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं साहिबजादे आगे अभी दायित्व लेने के लिए. ये सब कुछ जो चलता है इसके ऊपर मेरा सवाल था. मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ. आप पत्रकार हैं? जी सर. अच्छा. आप टेलीविजन और मीडिया देखते हैं? सर अच्छा. तो एक बात बताइए, मैं अगर काउंटर प्रश्न आपसे पूछूं कि 80% टेलीविजन हमेशा नेगेटिव गंध क्यों दिखाता है पूरे दिन? सुनिए, अगर मैं आपको एक जिम्मेदार आदमी के नाते ये बोल रहा हूं, अगर आप इसको दिखाना बंद करें, है ना, कि फलाना क्या बोल दिया, फलाना क्या टोक दिया, फलाना ये कर दिया, तो लोग भी सकारात्मक हो जाएंगे. आज मान लीजिए उड़ीसा में कोई एनजीओ कमाल का काम कर रहा है,
राजेंद्र सिंह ने अलवर में पानी के लिए कमाल काम किया, किसी ने जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं उनके लिए कमाल काम किया। ये स्टोरीज तो हम कभी भी टीवी पे नहीं देखते, कभी भी अखबार में नहीं पढ़ते। तो अंत में, वन सेकेंड सर, अंत में हम नेशन बिल्डिंग, यंग मैन, इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट. Nation building is not my effort versus your effort. It is our effort. Sir, one question I have. Yeah. Sir, you are talking about electoral reforms, corruption, Sir. all these things. Yes. For the last 40 years, so Sir. many commissions and committees have recommended for electoral reforms and implementation of state funding or national funding of election to curb or minimize corruption at the root. Yeah. But no party is interested to do all these things. Even your BJP government didn't implement local. So I think it's a very good question you have asked. And electoral reforms is the need of the hour, sir. And one of the needs of the hour is to increase the strength of the election commission. See, I'll give you two examples. Am I running short of time? Just 5 minutes. So I'll just give you two examples. Election commission does not have power to file cases once the election is over. That is not a good thing. Secondly, in the transparency guidelines, मतलब जिन लोगों ने पार्टी को डोनेट किया, उस पर भी पूरी ट्रांसपेरेंसी वो नहीं मांग सकते। कैसे? मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। एक पार्टी का नाम लूंगा, कोई बुरा ना माने, बीएसपी। बीएसपी ने वो केस सुप्रीम कोर्ट तक गया, कहा कि ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए। तो बीएसपी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में कहा, ईसी के एफिडेविट में कहा कि 86% जो लोगों ने हमको पैसा दिया, जिनके नाम हमने आपको दिए, वो मर चुके हैं। अब हो सकता है बहुत बड़ा कोइंसिडेंस हो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता, राइट? पर उस पर कुछ कर नहीं सकते। सेकेंडली, एक पार्टी आज तक डी रिकग्नाइज हुई, पीए संगमा जी की पार्टी एनपीपी, फॉर नॉट फर्निशिंग प्रॉपर दिस थिंग। एंड 2 साल उन्होंने नहीं दिया कोई कागज, एक दिन दिया तो उनको फिर से रख दिया। तो अंत में यू हैव टू हैव अ स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्शन कमीशन एज द फर्स्ट स्टेप ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म। आपने तो लार्जर क्वेश्चन पूछा, मैं समझ गया, उसमें बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा पहलू है। कल मैंने आईएसबी में इसी पे लेक्चर हैदराबाद में दिया, हो सकता है तो उसको सुन लीजिए इंटरनेट पे। हाँ जी, thank you very much for your. Yes. I am very impressed. Thank you, with sir. your activist work, Thank you, especially in education. Sir. We are working in education in Odisha, especially. I'll take all your questions. Just give me a second. वन क्वेश्चन मैं तो बोलना चाहूँगा Sir. कि जैसे आपका यहाँ उल्टा है। जैसे आपने यूपी में बोला कि अब जब जाते थे गांव में एनरोल है, लेकिन बच्चे काम करने जाते थे। यहाँ काम करने जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल में एडमिशन है और गवर्नमेंट स्कूल में उनका नाम एनरोल है। तो ये एक दूसरा पिक्चर है उड़ीसा में। तो हम लोग ये जो उड़ीसा में प्राइवेट स्कूल का जो बूमिंग हो रहा है, तो मैंने तो आपका आइडिया जो लिया कि सीबीएसई और आईसीएसई का ज़्यादा पैटर्न आ जाएगा तो ये थोड़ा आगे बढ़ सकता है, जो परसेंटेज बढ़ सकता है। इसको थोड़ा आपने देखिए, इतना बड़ा परिवार से आप एक्टिविस्ट का काम करते हैं, तो मैंने ये प्रपोजल हमारा है कि उड़ीसा में भी एजुकेशन में आप थोड़ा काम कीजिए और हमारा सपोर्ट पूरा रहेगा। उड़ीसा अभिभावक महासंघ हम लोग किए हैं और ये पूरा आपका सपोर्ट रहेगा। पहले समझने का काम कर लेते हैं, Yeah. फिर कुछ करने का। Yes. Thank you. जी सर। Yeah, Let's just keep now 2 more questions after this. Yeah. My question is, There's no questions from any ladies. We should have 1 question from the ma'am here. Yes, yeah, please. myself Prashant Panda, जी, sir. environmentalist. मेरा क्वेश्चन है, The most important job on the planet. because right I have now. taken a vow, the question I am just shifting, I have already taken a vow to plant 5 lakh trees. That is by individual effort. 1 lakh already planted. But sir, don't plant eucalyptus and No, that all this. I am reading taxonomy, I am reading botany, I am reading horticulture, I am So reading you know soil it. conservation, so that even but in sands, in water, in saline water, what plants can be planted, I am reading. Anyhow, my question is, let us, that is a question from the Public of Odisha, Sir. on behalf of Public of Odisha. I was also a student leader. Thing is that you are residing in Delhi, representing Uttar Pradesh. After independence, what is the fault of Odisha, or what is the reason
that when even the neighboring states, their per capita income, their cost of purchasing power, their standard of living, their universities, we are lagging behind in every front. What I have my own ideas, I have my own research, but what is your viewpoint as an MP? See, or a I'll leader? just like to say one thing. Firstly, I don't think that what you're saying is 100% correct, but I will say one thing, that this is not at all the fault of the state. See, marginal agriculture, sir, which is predominant in this state, marginal agriculture all over the country is failing. See, I'll give you an example. In Mandya in Karnataka, people have very small land holdings, so their input cost was very high and they were all loss making. They grouped the land together while keeping individual ownership. So what they found was, if they took, for instance, 1 acre of land, that person was making a terrible loss. But the moment they made it 7,000 acres of land and he kept his percentage ownership, the average per input cost per acre fell to half. So that farmer was able to make a profit. The challenge before us in Odisha, in Uttar Pradesh, in Bundelkhand, in Bagelkhand, everywhere, is to how to turn the marginal farmer into a profit-making entrepreneur. I'll take one last question. I'd like to take it from the lady. Yeah. Yes, ma'am. Yeah, thank you very much. I have two questions to ask, with regard to the education. Yes, ma'am. In any government, what we have observed, that the budget and education doesn't increase much. They don't increase much, but last 5 years budget, if we analyze the budget, we have seen that it has remained same. It has remained same. But the point is, when we are talking about the education of the child, and all children should be going to the school and no child will be left out. So, but if we do not increase the education budget, how are we going to achieve Ma'am, it? Let me complete it. And then the second, shall I ask the second Please. question? Yeah. Yeah, the second question is regarding as you have already said, that in your speech, that many acts, many laws have been passed without being sent to the standing committee. And I'm really, we are shocked and ashamed of the fact that even it's a disrespect to the women and the children also, because quite a few laws have been sent, didn't even go to Ma'am, we're the going too standing far now, committee, so and it yeah. has been passed. So what is your opinion about that? So the Especially the ordinance on death penalty has been even discussed in the parliament. It's a shame, definitely, and shocking incident. So if you could please clarify on this. The first question, which is that why don't we increase the expenditure on education? Ma'am, I said in this that it's okay, we're finished now. This is the last question. See, it is a 1950s or 60s notion that you spend more money to solve a problem. Now we've got to innovate to solve problems, right? When Amazon came to India, it destroyed Flipkart in one day because it innovated, it understood the market. And there's a very long discussion, but I will just say this. Spending more money on education does not guarantee a better education. Spending more money on the didactic aspect of education ensures a better education. As I said, we are spending 86% of funds on building buildings. Building buildings is not the answer to a better education. It is one answer, but not the only answer. So if we spend money on teacher training, I'm saying just reallocate existing funds. You don't need to throw good money after bad. You just need to circulate in a way that bad becomes good. Thank you. Thank you so much. We've run out of time, but thank you for taking all the questions. As you must have been aware, last year, Shri Gandhi's written a book. It's called The Rural Manifesto, which is already sold 50,000 copies, more than 50,000 copies, and it's a very...
and 2. It's being very critically acclaimed and it's considered significant literature and agrarian policies. So because he is here in Bhubaneswar today, we would like to take the opportunity to present the book to the audience. वर्तमान समय संवाद ग्रुप एक्जिक्यूटिव डायरेक्टर तनया पट्टनायक को अनुरोध करेंगे श्रीजुक्त वरुण गांधी को ओडिशा निर्माण कनक्लेव 2019 स्मारकी प्रदान करेंगे।